اس کو ہم ایک لاجک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، قرآن عظیم کی بات، اللہ کی بات، اس کو ہم اپنی روٹین میں دیکھیں، ڈیلی روٹین میں، تو سمجھ میں بات آ جائے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی بھی جو آپ یہاں حاضر ہیں اللہ کے گھر میں، بڑی سامنے کی بات ہے، بہت ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ایگزامپل میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مولانا موسیٰ صاحب ہے، ان کی پہچان، جس کو پہچان کہتے ہیں معرفت، یا ان کو قربت، نزدیکی، یا ان کا تعلق، ریلیشن، آپ کے پورچگل کے حاکم اعلیٰ پرائم منسٹر سے ہو جائے، کیا نام ہے پرائم منسٹر کا؟ پاسوشکوئی، ان سے وزیر اعظم کا، پرائم منسٹر کا تعلق ہو جائے، پہچان ہو جائے، قربت مل جائے، یہ قریب ہو جائے، بتاؤ ان کا رنگ کیا رہے گا؟ سبحان اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے یار، جو 5 سال کے بعد چینج کر دیا جائے، پتہ نہ چلے کہ کل ہم اس کرسی پہ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے، ایک ایسے چھوٹے سے ملک کے حاکم کا قرب حاصل ہو جائے، دوستی مل جائے، اس کا دوست بن جائے، پہچان ہو جائے ایک دوسرے کو، تو عالم یہ ہوگا کہ جب پرائم منسٹر ہاؤس میں جائیں گے تو لوگ ان سے ڈریں گے، یہ کسی سے نہیں ڈریں گے۔ سبحان اللہ، بے شک سچ ہے۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ تم دوستی کا حق تو ادا کرو، اور اپنے حاکم سے، اور جو احکم الحاکمین ہے اس کا جو دوست بن جائے، اس سے جو تعلق ہو جائے، اس سے جو دوستی ہو جائے، اس سے جو اس کا رابطہ ہو جائے، اس سے جو قریب ہو جائے اور مقرب بارگاہ الہیہ ہو جائے، تو اس کو تو دنیا میں کیا کہیں پر کوئی نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دنیا کے ایک چھوٹے سے ملک کے ایک حاکم سے دوستی ہو جانے کے بعد سینہ چوڑا کر کے لوگ چلتے ہیں، سینہ چوڑا کر کے چلتے ہیں، اسٹریٹ میں یا محلے میں یا بلڈنگ میں ایسا تان کے چلتے ہیں کہ جیسے کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کوئی خوف ہی نہیں ہے، اور کوئی غم بھی نہیں ہے، کسی کو بھی ٹھونک دیں ان کو کوئی غم نہیں ہے، جاؤ تم ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتے، اس لیے کہ حاکم سے ہمارا تعلق ہے۔ یہ تو روٹین کی بات ہے، آپ جانتے ہوں گے۔ جی، تعلق ہو جائے، بس دوستی ہو جائے، رنگ بدل جاتا ہے، انداز بدل جاتا ہے، ایٹیٹیوڈ بدل جاتا ہے، بیہیویئر بدل جاتا ہے، رشتہ اور تعلق بدل جاتا ہے، بات کرنے کا انداز بدل جاتا ہے۔ اب جو اپنے احکم الحاکمین، جو بادشاہوں کے بادشاہ، جو حاکموں کے حاکم، وہ حاکم مطلق کا جو قرب پا جاتا ہے، اس کے انداز کا کوئی انداز ہی نہیں لگا سکتا، کوئی احساس کر سکتا ہے حقیقی معنوں میں۔ اسی لیے یہ جو حسینی میاں نے کہا کہ وہ ڈرتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور جو رب سے ڈرتا ہے اس سے سب ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بڑے ذہین لوگ ہیں اللہ کے جو دوست، بے شک، دوستی ایسے نہیں کرتے، بہت سوچ
समझ के मैं इसी मार्च में इसी साल के कराची था, तो क्यों टीवी पर मेरा इंटरव्यू और लाइव प्रोग्राम उन्होंने, तो तस्लीम साबरी साहब थे, उनका हजरत आज आपसे आप पर्सनल मैटर पे भी बात करेंगे आपसे, बुरा न मानिएगा। उनका ठीक है, आप बेशक जो चाहिए पूछिए, खैर सवाल करते रहे, हम जवाब देते रहे। तो बड़ी प्यारी बात बताओ, बस अचानक वो उन्होंने पूछ लिया, ऐसे ही पूछा कि आप किसी से डरते हैं? उससे क्या पूछा? आप किसी से डरते हैं? तो मैंने कहा मैं दो से डरता हूँ। बहुत सरप्राइज हुए, अच्छा आप दो से डरते हैं, कौन? तो मैंने कहा एक तो अल्लाह से डरता हूँ और एक उससे डरता हूँ जो अल्लाह से नहीं डरता। सुभान अल्लाह। चल पड़े, वो इंटरव्यू ले रहे थे लेकिन कंट्रोल के बाद हो गए वो। तो अल्लाह से डरता हूँ और उससे डरता हूँ जो अल्लाह से नहीं डरता। वो क्या लफड़ा कर डालेगा कुछ पूछो मत, जिसे अपने रब का खौफ न हो, क्या कर डालेगा इस दुनिया में। उससे डरता हूँ कि मखलूक के खुदा उसके शर से महफूज रहे। तो ये हुसैनी मियाँ साहब का अभी तो शायद इन्होंने कहा है कि ये टॉपिक अभी रहेगा कंटिन्यू। अच्छा ठीक है। अब उसमें तरह का यूँ समझिए कि जैसे आप तरावी तो सुनते हैं, अभी सुनेंगे मुबारक आ रहा, तो पीछे कुछ हाफिज खड़े किए जाते हैं ना, क्यों? लुकमा देने, किसके लिए? लुकमा। तो इसीलिए इस वक्त मैं लुकमा देने वाला काम कर रहा हूँ। ये कितना पक्का हाफिज क्यों ना हो, कितना ही पक्का क्यों ना हो, कितना ही पुराना क्यों ना हो, लेकिन पीछे रखा जाता है। मुतवल्ली लोग जरूर पीछे रखते हैं कि पता नहीं कहाँ यहाँ लमून तालमून में पहुंचा दे ये एक रहे लुकमा देने वाला, ताकि कम से कम ये है कि फिर पटरी को बात आ जाए। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून वल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। ये दरअसल अल्लाह ताला इस आयत पाक में, इस फरमाने इलाहिया में पूरी कायनात, पूरी 18,000 आलम का सारा निज़ाम इस आयत पाक में मौजूद है। और बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही, बड़ी प्यारी बात। अल्लाह ताला ने ये इरशाद नहीं किया कि मैं अपने दोस्तों को तकलीफ नहीं देता, नहीं था, ये नहीं था। अपने दोस्तों को बला नहीं देता, मुसीबत नहीं देता। ये कैसी दोस्ती? दोस्ती भी हो, मुसीबत में भी मुब्तला कीजिए। दोस्ती है भूखा प्यासा रखिए, दोस्ती हो गर्दन कटवाइए। ये कैसी दोस्ती? दोस्ती है और आरा चलाया जा रहा, चीरा जा रहा है। दोस्ती है और मछली के पेट में पहुंचाया जा रहा है। ये कैसी दोस्ती? लेकिन अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा। अच्छी बात कहा हुसैनी मियां, इसलिए कि वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। मैं कंपलसरी लाजमी तौर पर इम्तिहान दूंगा, बला दूंगा, मुसीबत दूंगा। और कैटेगरी भी बयान की
खौफ देकर, भूखा रखकर, माल कम करके, जान ले करके, प्रॉपर्टी जायदाद कम करके, कंपल्सरी मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा। और दिलचस्प बात तो यह है कि करबला की धरती पर अल्लाह के उस दोस्त ने पांचों कैटेगरी का इम्तिहान दिया। बेशक सुभान सुभान अल्लाह। मालूम है आपको कि जब खौफ तारी होता है, डर आए, जैसे वर्ष कर लो कि सर्च के लिए पुलिस आने वाली है, इंटेलिजेंस के लोग आने वाले हैं हमारे घर में, तो ऐसा खौफ तारी होता है कि भूख भी नहीं लगती, पका हुआ खाना भी है तो खाने को जी नहीं चाहिए। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और ये कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i, खौफ को जू के साथ बयान किया कि खौफ दे करके और भूखा, दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। जब कभी भी इंसान खौफ में मुब्तला होता है तो कोई चीज उसको अच्छी नहीं लगती है, खाने को जी नहीं चाहना, पीने को जी नहीं चाहना। तो ये तारीख है कायनात, आलम इंसानियत की तारीख है, इस आयत पाक में पूरी की पूरी कही गई। इसलिए दोस्तों, आज नींद और बेदारी की बात थी, जैसे माँ ने लुकमा दिया मुझे कि वो अपनी जगह छोड़ा था इन्होंने, तो जगह छोड़ने में मतलब जहाँ बात अपनी छोड़ी थी, कोई साल मौला तला हम कल इस पर फिर करेंगे। खौफ और डर, ये इनका टॉपिक है, और जागना और सोना ये हमारा टॉपिक है। 2-3 दिन जो रहेंगे इंशाअल्लाह ताला आप लोग आते रहेंगे और ये सिलसिला भी कायम रहेगा। ये हम जगाते रहेंगे और सुलाते रहेंगे, ये खौफ दिलाते रहेंगे और गम से गुजारते रहेंगे। ये दोनों चीजें जो हैं इबादत है, सोना भी मोमिन का इबादत है, जागना भी मोमिन का इबादत है। सो रहा है मोमिन जब भी उसकी इबादत है, अल्लाह की इबादत कर रहा है, जाग रहा है जब भी अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो खौफ में मुब्तला है जब भी अल्लाह की इबादत कर रहा है, वो गम में मुब्तला है जब भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। ये दोनों मफहूम सात समुंदर अगर इसके ऊपर रोशनाई बना करके लिखे जाएं इसको कलम से, जब भी इसके तफसीर का हक अदा नहीं किया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप हम सब पढ़े लिखे कि हम सब साहिब ईमान हैं और एक मोमिन घर में पैदा हुए। हमारे दादा हुजूर मखदूमुल मिल्लत मुहद्दिस आज़मी रहमतुल्लाह तआला अलैह से सवाल किया गया कि हम कितने बदनसीब हैं कि हुजूर के दौर में पैदा हुए, हुजूर के साथ नमाज पढ़ते, मस्जिद नबवी में सरकार की ज़ियारत करते, हुजरे आयशा से जब निकलते और रियाजुल जन्ना में आके बैठते तो हम भी सरकार के आफताब जैसे चेहरे को देखते, महताब जैसे नूर को देखते। कितने बदनसीब हैं कि इस दौर में पैदा हुए। ये शर का दौर, नकालों का दौर, डाकुओं का दौर, इस दौर में अल्लाह ने हमें पैदा किया। हम कितने बदनसीब हैं। उस दौर में पैदा होते तो कितने खुश नसीब थे। ये बताओ सवाल सही है या नहीं? बोलो। सही है। हमारे दादा ने कहा कि हम बहुत खुश नसीब हैं कि इस दौर में अल्लाह ने हमें पैदा किया और मोमिन के घर में पैदा किया। सुभान अगर उस दौर में हुजूर के दौर में पैदा करता और अबू जहल के घर में पैदा करता तो कहीं के न रहते। बेशक
हमारी किस्मत इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि हिमालय की चोटी भी उसके सामने कुछ नहीं है कि हमको पैदा किया हमारे रब ने तो ईमान के साथ पैदा। असल चीज क्या हुई? ईमान। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर पवित्र, जिन्होंने कांटे बिछाए, पत्थर मारे, दंदाने मुबारक शहीद किया, पूरे जिस्म पाक को छलनी कर दिया, खून बह रहा है, वो लोग भी तो थे हुजूर के दौर में। सच। तो सच्ची बात तो यही है, हमारे और आपकी खुशनसीबी की बात है, हम आप ईमान के साथ हैं। मौला करीम हमें ईमान के साथ कायम रखें, ईमान पर हमारा खात्मा हो, ईमान ही के साथ हम जिंदा सलामत रहें, और ईमान ही के साथ अपने मौला की बारगाह में हाजिर रहें। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन